अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने गौतम अदानी केस पर आज कहा कि रेगुलेटर्स अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत ने सेबी को आज़ाद छोड़ दिया है ताकि वो इस मामले की सही जांच कर सके। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बैंकों और LIC ने RBI को अडानी ग्रुप के सामने आने के बारे में बताया है। ये इत्तला उन्होंने आज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को दी। अडानी के FPO को वापस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि FPOs आते हैं और जाते हैं। मुल्क में कई बार FPOs वापस लिए जा चुके हैं और इससे हिंदुस्तान की शबिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उतार चढ़ाव हर बाजार में होता है। You know, the concern that you've expressed about green, I fully appreciate it. There was a time when we thought very landlocked kind of cities and towns are the ones which suffer from very severe air pollution and so on. I take the example of Delhi, which is unfortunately severely affected, and also very many solutions are being discussed. But we've not seen considerable progress. And there was also this feeling from people like me who come from states which have coastlines, and therefore Mumbai, that the sea does the good cleaning job for us every day. So by the evening you get fresh air and so on. But this time Mumbai has suffered, despite the sea and so on. So I think to answer the question, the budget does speak about it. It's not just speaking about greening ourselves. It's not speaking about transitioning into from fossil fuel to renewable. It's also talking about waste management. How you treat your liquid wastage. How do you really get to the stages of cleaning that up so that that doesn't add to pollution of a different sort, but yet pollution. Dry waste, humongous waste in metropolitan cities where our population is such that there's a disproportionate planning for managing dry waste also. You end up having huge piles of dumps, which themselves generate certain gaseous air which affect us. So urban planning, and I must, give a word of compliment also for the ministry. When it comes to the question of state borrowing limits, on which the center has a right to broadly direct it, borrowing has been to a minuscule extent linked with performance in reform, inclusive of urban planning, waste management, and so on, so many other components. Some states are very good in responding, saying, this is an opportunity for us to clean up and give better air, give a better environment, and so on. But many others don't respond. I don't attribute any malice, but sometimes they're rather slow in responding to it. They think it's a big burden on them. We are not allowing them to freely borrow and so on. But these are ways in which we are trying to incentivize both treatment of waste, better urban planning, and also making sure that कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदंबरम ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को मंसूख करने के फैसले पर मरकज पर हमला किया। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में अक़लियती उम्र की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा था कि आला तालीम के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जैसी मुख्तलिफ स्कीमें पहले से ही चल रही हैं। ऐसे में हुकूमत ने माली साल 2022-23 में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को मंसूख करने का फैसला किया। हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए साबिक़ मरकजी वज़ीर P चिदंबरम ने ट्वीट किया कि अक़लियती तलबा के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए तालीमी खर्चों पर सब्सिडी को मंसूख करने का हुकूमत का फैसला मनमाना और गैर माकूल है। हुकूमत की जानिब से बहुत सी स्कीमों को चलाने की दलील पर चिदंबरम ने लिखा कि क्या ये फेलोशिप और सब्सिडी थी जो दूसरी स्कीमों की तरह थी। चिदंबरम ने लिखा कि मनरेगा PM किसान की तरह है, ओल्ड एज पेंशन भी मनरेगा की तरह है और ऐसी दर्जनों स्कीमें हैं जो चल रही है।
चिदम्बरम ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अक़लियती तुलबा की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है और खुलेआम अपनी अक़लियत मुखालिफ पॉलिसी का मुजाहरा कर रही है। गोया ये केस की इज्जत का मामला है। चिदम्बरम ने इसे शर्मनाक करार दिया। दिल्ली में 2022 में आबकारी नीति यानी शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए रुख से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार ईडी ने आबकारी नीति यानी लिकर पॉलिसी घोटाले में स्पेशल कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर ईडी ने दावा किया कि उन्हें 100 करोड़ रुपए ली गई रिश्वत की रकम की जानकारी मिली है, जिस रकम को सीएम केजरीवाल के हुक्म पर गोवा की इंतखाबी मुहिम में खर्च किया गया। इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में शामिल मुलजिमीन में से एक विजय नायर के फोन से फेस टाइम पर वीडियो कॉल कर विजय नायर को अपना आदमी बताते हुए इस एक्साइज पॉलिसी के घोटाले में रिश्वत की रकम मुलजिमीन से देने को कहा गया था। एक्साइज पॉलिसी में हुए घोटाले के कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने बताया कि कैसे शराब घोटाले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। ईडी ने दावा किया कि एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत मिले। ईडी ने चार्जशीट में यह भी खुलासा किया कि शराब घोटाले को अंजाम देने वाले कायदीन, वुजरा और उनके साथियों ने इन पैसों का इस्तेमाल किया। ईडी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि मुलजिमीन और उनके साथियों ने सबूत मिटाने की भी भरपूर कोशिश की। मनीष सिसोदिया ने 1 दर्जन से ज्यादा फोन बदले हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे के नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड का भी इस्तेमाल किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने सिसोदिया के साबिक सेक्रेटरी और गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन में से पूछताछ की बुनियाद पर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे अरविंद ने कहा कि उन्हें उनके बॉस ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर बुलाया था, जहां उन्हें ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट दी गई। सिसोदिया के अलावा वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सत्येंद्र जैन एक दीगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। ईडी ने कहा कि निजी हाथों में होलसेल कारोबार देने और 12% प्रॉफिट मार्जिन जो कि 6% रिश्वत के साथ तय करने पर कैबिनेट में बहस भी नहीं की गई। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया। इल्जाम लगाया गया कि केजरीवाल को भी घोटाले के मुलजिमीन के साथ उनकी मिली भगत थी। उन्होंने मुबैना तौर पर शराब कारोबारी समीर महेंद्र से बातचीत की थी और उन्हें विजय नायर को अपना आदमी बताते हुए भरोसा करने के लिए कहा था। दिल्ली शराब घोटाले में कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत का इल्जाम लगाते हुए अजय माकन ने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया। आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के कायद अजय माकन ने कहा कि रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल केजरीवाल ने गोवा इंतखाबात में कांग्रेस को हराने के लिए किया। केजरीवाल को कोई अखलाकी हक नहीं बनता कि वो वजीर आला के ओहदे पर बने रहें। – 2014 के बाद से अब तक के पिछले 9 वर्षों के अंदर क्या केजरीवाल जी ने एक बार भी कोई प्रदर्शन लोकपाल के लिए किया? और ये आज हम लोग कांग्रेस पार्टी पूछ इसलिए रही है कि 2014 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जब इनकी सरकार थी तो 14 फरवरी 2014 को आज जो है, आज क्या तारीख है? 4 है 5 है 4 फरवरी 2023 है और 14 फरवरी 2014 को यही केजरीवाल जी ने सपोर्ट कांग्रेस की होने के बाद भी इन्होंने सरकार को डिसॉल्व करने के लिए कह दिया। ये इस बात को लेकर के कि लोकपाल पास नहीं हो पा रहा है और इन्होंने कहा कि हम लोग पूरी मेजॉरिटी के अंदर हम जनता के बीच में दोबारा जाएंगे और पूरी मेजॉरिटी के अंदर आएंगे और पूरी मेजॉरिटी के अंदर हम आएंगे और हम लोकपाल करके आएंगे। इस वायदे के साथ में दोबारा जनता के बीच में गए। तो जो 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल जी ने सरकार को डिसॉल्व करा लोकपाल को लेकर के और कहा कि हम जनता के बीच में दोबारा जाएंगे लोकपाल लेकर के, आज हम लोग केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि वो लोकपाल कहां है और उसके बारे में आपने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। 9 साल तक के आपको वो लोकपाल की आपको कोई भी जरा सा भी कोई ध्यान तक नहीं आ रहा। और सिर्फ यही नहीं,
हैरानी की बात है, मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी की सरकार ने लोक आयुक्त का एक्ट पास करके लोक आयुक्त की स्थापना करी थी। केजरीवाल जी का यह कहना था कि लोकपाल और स्ट्रांग है, हम भी मानते लोकपाल और स्ट्रांग है, होना चाहिए, लेकिन जो कमजोर लोकायुक्त है उसकी तरफ भी इनका कोई तवज्जो नहीं है। 2020 के अंदर लोकायुक्त जब रिटायर हुआ, उसके बाद 2022 तक के 2 साल इन्होंने लोकायुक्त को अपॉइंट ही नहीं किया। कोर्ट ने, हाई कोर्ट को ऑर्डर्स करने पड़े, जब जाकर के नया लोकायुक्त अपॉइंट हुआ। 2017-18 के अंदर आखिरी एनुअल रिपोर्ट लोकायुक्त की विधानसभा के पटल पे ले हुई। 2017-18 से लेकर के अब तक के लोकायुक्त जो है उसकी रिपोर्ट, पिछले 6 सालों से की रिपोर्ट अभी तक के विधानसभा के ऊपर, एनुअल रिपोर्ट जो कि आनी चाहिए वो अभी तक के विधानसभा के पटल पे रखी नहीं है एलजी के अप्रूवल के बावजूद। डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्त के पास में होता है, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। एलजी के अप्रूवल के बावजूद डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्त के पास में ही नहीं है। अभी भी कमजोर लोकायुक्त, उसके पास में कमजोर लोकायुक्त के पास में पावर्स नहीं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन तक के उसकी अपॉइंटमेंट अभी तक के केजरीवाल ने नहीं करी एलजी के अप्रूवल के बावजूद। तो आज हम आपसे पूछते हैं केजरीवाल साहब, सबसे पहले कि लोकपाल कहां है? लोकपाल को तो छोड़िए, लोकायुक्त के भी आपने हाथ पांव काट दिए, उसकी भी। दिल्ली में मुंबई अनाज शराब घोटाले को लेकर बीजेपी वर्कर्स ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। वो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीजेपी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया है। दरअसल ईडी ने शराब घोटाले में हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने घोटाले का पैसा गोवा इंतखाबात में खर्च किया। इस मुजाहरे में असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह विद्रोही, रियासती सदर वीरेंद्र सचदेव और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान सचदेव ने कहा कि 1995 में मदन लाल खुराना पर इल्जाम लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल में अगर मोरालिटी है तो वो ईडी की चार्जशीट में अपना नाम आने पर इस्तीफा दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज झारखंड का दौरा किया। वो 2 रोजा झारखंड के दौरे पर हैं। उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। उन्होंने उनके साथ बाबा वैद्यनाथ की मंदिर में पूजा की। फिर 450 करोड़ रुपए की लागत से इफ्को के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान अमित शाह ने 2 इंतखाबी मीटिंग्स से भी खिताब किया। रैली में अमित शाह ने कहा कि झारखंड में वोट बैंक की सियासत हो रही है। रियासत में घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है। आदिवासियों की तादाद 35% से 24% रह गई। उन्होंने हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि वो इंतखाबी मैदान में आकर 2-2 हाथ कर ले। हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहाँ की जनसांख्यिकी भी बदल रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिया घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसांख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है मित्रों। और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवधर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रही है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में कर्नाटका असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी ने हफ्ते के रोज एक बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को इंचार्ज अपॉइंट किया है। वहीं मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया और बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के सदर के अन्नामलाई को इंचार्ज के तौर पर अपॉइंट किया गया है। बता दें कि वजीर आजम को पहले भी माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को पहले भी कई इंतखाबात का जिम्मा सौंपा जा चुका है। रियासत में इस साल अप्रैल मई में इंतखाबात होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मुल्क में हिंदुओं और अक़लियतों की हालत पर बात की। उनका मानना है कि दुनिया में अगर कोई मुल्क है जहां अक़लियतें सबसे ज़्यादा महफूज हैं तो वो हिंदुस्तान है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदुस्तान आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सेक्युलर है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान आज सेक्युलर है क्योंकि ये हिंदू अक्सरियत में है। यहाँ हर किसी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। हिंदू वासुदेव कुटुंबम के पैगाम पर यकीन रखते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इंटरव्यू में वज़ीर आला ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अक़लियतों की हालत पर भी बात की। उन्होंने मिसालें पेश करते हुए कहा कि किस तरह बहुत से ममालिक में अक़लियती बरादरियों के मजहबी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक में किसी और मजहब के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहां उनके यानी अक़लियती मजहबी मकामात को मिसमार किया जा रहा है तो वहाँ कोई नहीं बोल रहा। मिसाल सबके सामने है तो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं कि इस मुल्क को सखावत की सजा दोगे। दिल्ली की एक कोर्ट ने शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को 2019 के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तशद्दुद के मामले में बरी कर दिया है। हालांकि शर्जील को अभी भी जेल में ही रहना होगा। वो दिल्ली दंगों के कॉन्स्पिरेसी केस में भी मुलजिम है। उनके खिलाफ कई और एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। वहीं तनहा जमानत पर जेल से बाहर हैं। 4 महीने पहले दिल्ली की एक अदालत ने शर्जील इमाम को मुल्क से गद्दारी के एक मामले में 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। उसमें उन पर भड़काऊ तकरीर करने का इल्जाम लगाया गया था, जिसकी वजह से 2019 में जामिया नगर इलाके में तशद्दुद हुआ था। इमाम 3 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। बयान का वीडियो सामने आने के बाद शर्जील इमाम चर्चा में आए थे। उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे से जुड़े कई मामलों में मुलजिम बनाया गया। शर्जील को जनवरी 2020 में भड़काऊ भाषण और मुल्क से गद्दारी से जुड़े एक और मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में हफ्ते के रोज फायर ब्रिगेड भर्ती के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान खातून उम्मीदवारों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। खातून उम्मीदवारों ने भर्ती के दौरान धांधली का इल्जाम लगाया। लड़कियों ने कई इल्जाम लगाते हुए भर्ती रद्द करने की मांग की। मुंबई में फायरमैन भर्ती 2023 के लिए वॉक इन के जरिए सिलेक्शन किया जाना था, जिसे लेकर कई लड़कियां जुमे की रात से ही ऑफिस के गेट के बाहर बैठी थी। मुंबई के
गोपीनाथ मुंडे मैदान में खातून फायर ब्रिगेड ऑफिसर की भर्ती का काम चल रहा था, जहां पर लड़कियां रात से ही इकट्ठी होकर उसी जगह भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुबह उन्हें गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, जिसके बाद उम्मीदवारों ने बीएमसी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। नारेबाजी के दौरान पुलिस और लड़कियों में धक्का मुक्की भी हुई। मुंबई में कई दिनों से फायर ब्रिगेड भर्ती का अमल रद्द करने की मांग की जा रही है। तमिलनाडु के तिरुपत्तर के वानियाबाड़ी में हफ्ते के रोज भगदड़ में 4 खवातीन की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वहां थाईपुसम त्योहार के मौके पर एक शख्स मुफ्त साड़ियां और विशट यानी सफेद धोती के टोकन बांट रहा था। टोकन लेने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। तमिल कौम के लोग थाईपुसम त्योहार मनाते हैं। ये भगवान मुरुगन की जयंती होती है। वहां के लोग उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को इसी से जुड़ी एक मिथ, एक माइथोलॉजी से जुड़ी कहानी है। उसके इसी को लेकर यह त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तफरीही दुनिया से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। मशहूर गुलकार वानी जयराम का इंतकाल हो गया। वो 77 बरस की थी। वानी जयराम चेन्नई में अपनी रिहायशगाह पर मुर्दा पाई गई। उनकी मौत कैसे हुई, इस बारे में फिलहाल कोई इतला नहीं है। हाल ही में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने कई बड़ी और मशहूर फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। फिल्म गुड्डी का मशहूर गाना बोरी पपीहा और उसी फिल्म का दुआया गाना हमको मन की शक्ति देना वानी जयराम ने ही गाया था। वानी जयराम ने हाल ही में एक पेशावर गुलकार के तौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री में 50 साल मुकम्मिल किए। उन्होंने अपने करियर में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। वानी ने कई तजुर्बेकार मौसीकारों के साथ काम किया, जिनमें जयराम, आर डी बर्मन, ओपी नैयर, मदन मोहन, केवी और महादेवन शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने मुल्क में बनी उस आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी है, जिसके इस्तेमाल से अमेरिका में 55 लोगों को इन्फेक्शन और 1 मौत की शिकायत हुई। इस इंस्टीट्यूशन ने यह भी कहा कि जुमे के रोज मामला सामने आने के बाद से ही दोनों मुल्क इस मामले की जांच में जुट गए हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कंज्यूमर्स को इंतबाह दिया कि वो एजरी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स नाम की इस दवा को ना खरीदें और ना इस्तेमाल करें। इस दवा से इन्फेक्शन होने का खतरा है। जराये के मुताबिक मरकजी वजारत सेहत के तहत आने वाले CDSCO और तमिलनाडु के स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इन आई ड्रॉप्स के किसी बैक्टीरिया से मुतासिर होने का अंदेशा है। लोगों को फौरी इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इंतबाह दिया गया। चिली में समर हीट वेव के चलते कई जंगलों में आग लग गई है। आग में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 14,000 हेक्टेयर यानी 35,000 एकड़ का इलाका जल गया है। ओहदेदारों ने बताया कि दारुल हुकूमत सैंटियागो से करीब 500 किलोमीटर दूर सैंता जुआना शहर में एक फायर फाइटर समेत 11 लोगों की मौत हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक ला एरेकोनिया में भी एक इमरजेंसी सपोर्ट के लिए पहुंचा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट और एक मैकेनिक की मौत हो गई। बायो और नूबल के खेतों और जंगलों में मची तबाही को देखते हुए जायद फौजियों को तैनात किया गया है। वहां के वजीर दाखिला कैरोलिना टोहा ने कहा कि मुल्क भर में आग लगने के 39 वाकयात सामने आ चुके हैं, जिसमें सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। आने वाले दिनों में हालात और खराब होने का इंतबाह दिया गया है। चिली में बढ़ती आग को देखते हुए अर्जेंटीना और ब्राजील से 63 प्लेन्स को आग बुझाने की कोशिश में लगाया गया है। सदर गैब्रियल बैरिक ने जुमे को अपनी छुट्टियों के बीच में रोकर नूबल और बायोपियो का दौरा किया। इन दोनों इलाकों की जुमला आबादी करीब 20 लाख है।
अमेरिका में जुमे के रोज ठंड के चलते आर्कटिक ब्लास्ट हो गया, जिससे इलाके में दर्जे हरारत में भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई। न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन में टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। घटते दर्जे हरारत को देखते हुए न्यूयॉर्क समेत न्यू इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में करीब 16 मिलियन लोगों को वार्न किया गया है। मैन में 1981 के बाद पहली बार इतनी ठंड पड़ी है। रियासत में लोगों के लिए 150 शेल्टर खोले गए हैं। पूरे इलाके में ठंड के चलते सभी इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। नॉर्थ पोल के आसपास का इलाका आर्कटिक के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक ब्लास्ट में उसी हिस्से से ठंडी हवा का एक बड़ा सा गोला कनाडा से होते हुए अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में अचानक से टेम्परेचर में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। इस हालत में कुछ ही घंटों में टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिर सकता है। मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। ठंड को देखते हुए बोस्टन, वॉस्टर और मैसाचुसेट्स में स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, जिससे बस का इंतजार करने वाले या पैदल जाने वाले बच्चों को हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट ना हो। बोस्टन के मेयर ने शहर में इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए वार्म सेंटर्स खोले हैं। महकमे मौसमियात ने इस ठंड को वंस इन द जनरेशन बताया। माउंट वॉशिंगटन स्टेट पार्क में सबसे ऊंची चोटी पर टेम्परेचर -46 डिग्री दर्ज किया गया है। It's just gorgeous. हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला टेस्ट 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होने वाला है, जिसके लिए हिंदुस्तानी टीम नागपुर पहुंच चुकी है। टीम के होटल पहुंचने पर टीम का इस्तेकबाल करते हुए वहां हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों के माथे पर तिलक लगाए जा रहे थे। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने तिलक लगाने से इनकार कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग उनकी हिमायत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तिलक लगाने से इनकार करना कोई गलत बात नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल में जब सभी खिलाड़ियों को होटल इंतजामिया की खातून की जानिब से तिलक लगाकर इस्तेकबाल किया जा रहा था, तो मोहम्मद सिराज बगैर तिलक लगाए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही उमरान मलिक भी करते नजर आए। मैं यहाँ से नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।